Now, myself is Victor Felix. Now, welcome to St. Michael's Academy e-learning classes. Now, in my previous video, I have explained the basic concept of fundamental theorem of arithmetic. Now, I am going to explain and solve some questions from NCERT book that is related to the topic which I have explained. Now, the very first question, you have to question from exercise 1.2, question number 5 of NCERT book. In this questions, you have to check whether 6 raised to the power x ends with 0 or not. Again, just recall the corollary of fundamental theorem of arithmetic. That it tells us that if the prime product of a number contain 2 and 5 both, only in that condition that number ends with 0. So here 6 to the power x, and the prime product of 6 is equal to 2 into 3. Now here it contains only 2. What is the condition for a number to end with 0? Related to the prime product, that it must contain 2 and 5 both. 2 or 5 more. 2 and 5 both. Since the product of 6 contains only 2, since the prime product of 6 contain only 2, it never ends with 0. Because what is the condition, again I would like to repeat, what is the condition of a number to ends with 0? That if the prime, since a number ends with 0 only when its prime product contain 2 and 5 both. Since this number contains only 2, so 6 to the raised to the power x never ends with 0. Now coming to the question number 7. Here you have to give the reason why 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Just recall, what is a composite number? If a number has more than 2 factors, so we check this number. 7 into 11 into 13 plus 13. How many factors this number contains? So this number has 2 parts, 7 into 11 into 13, and here is also 13. In both the term 13 is present, then we will take 13 as a common. And 7 into 11, 13 has come outside, 1 plus 13 has come outside, then here is 1. Then that is equal to 13 into 7 to 11, 77 plus 1 means 30 into 78. I will try to factorize this number. 13 is a prime number, so it has only, it is divisible by only 1 and we said. Then 78, find the factor of 78. 2 3 is 6, 2 9 is 18. Then 3 1 is 3, 3 3 is. So this 78 can be represented as 2 into 3 into 30. So this number has how many factors? 1, 2, 3, 4, 1 and itself. This number 30 into 78 can be divisible by 6 different numbers. So then we write it. So the given number is a composite number. So here I have explained you prime numbers, condition of fundamental theorem, composite number. We are using this term or not. So it is very important. Again, I would like to
रिमाइंड यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक आप पढ़िए मैथ्स में, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट उसके सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट की है, जिससे आप किसी भी क्वेश्चंस को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कभी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं या आप डिफिकल्ट लेवल में एंटर करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद आप बना पाए, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाएगा तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बच्चों, जो बेसिक कंसेप्ट है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि उसको आप बहुत ध्यान से समझिए। ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के सेट निकाल कर देखेंगे तो जो क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, आप देखिएगा, मैक्सिमम सेट में वो क्वेश्चन आता है। इसमें आपको प्रूव करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 दैट √5 इज एन irrational नंबर। ये क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक से इसको प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है? अपोजिट। आप जैसे अपने क्लास के किसी एक बच्चे को अपने ध्यान में रखिए, मैं इसको समझाना चाहता हूँ कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक क्या है। जैसे मान लीजिए आपके क्लास का लड़का जो फर्स्ट आता है क्लास में, बहुत ही डिसिप्लिन है, वेल बिहेव्ड है, रेगुलर है, तो मान लेंगे कि सपोज लेट संजय इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। मैंने आपको क्या बताया? संजय बहुत ही अच्छा लड़का है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी लॉजिक में ठीक उसका उल्टा हमने मान लिया। हम क्या मान लिया? नॉट ए गुड स्टूडेंट। तो हमने इसका स्टडी देखा तो हमेशा क्लास रिस्पॉन्स आता है, आउट ऑफ 10 उसको आप कितना मान लेंगे? 10। उसका बिहेवियर क्या है? बिहेवियर आउट ऑफ 10 ऑल्सो 10। उसकी रेगुलरिटी कितनी है स्कूल में? आउट ऑफ 10 9। वो दोस्तों के साथ कोऑपरेटिव है कि नहीं? तो बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, तो आउट ऑफ मान लीजिए 8 देते हैं। तो जब हमने उसको चेक करना किया अलग अलग मापदंड पर, तो हमने पाया कि स्टडी में बहुत ही अच्छा है, उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही रेगुलर है और बहुत ही कोऑपरेटिव है। यानी कि हमने जो माना था, एज्यूम किया था, वो कंट्राडिक्ट हो गया उसके फैक्ट से, विच मीन्स संजय इज ए गुड बॉय। ये मैंने क्यों आपको एक्सप्लेन किया? क्योंकि इसी तरह से हम इस कंडीशन को प्रूव करेंगे कि √5 हमारा इरैशनल नंबर है। तो अगर हम इरैशनल नंबर का अपोजिट ले लें तो कौन सा नंबर होगा? जैसे गुड बोर्ड का अपोजिट नॉट गुड हुआ, तो इरैशनल नंबर का अपोजिट क्या होगा बच्चों? रैशनल। हम मान लेंगे कि √5 इज लेट √5 is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है इसको, तो √5 की कंडीशन क्या हो जाएगी? √5 कैन बी रिटन एज P/Q। अब इसके दो कंडीशन होंगी, P and Q आर इंटीजर्स, Q is not equal to 0। ये आप पढ़ चुके, क्लास 7 में पढ़ चुके, ये आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरा कंडीशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, P and Q आर को-प्राइम, जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। को-प्राइम नंबर क्या है? पेयर ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल ओनली बाय 1। मतलब हम कल्पना करें P और Q एक ऐसी संख्या, दो अलग अलग ऐसी संख्या है जो केवल एक से कट सकती है पूरी तरह, जिसमें केवल दोनों संख्या इससे डिविजिबल है 1 से। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या हो
5 is equal to p square upon q square. Squaring both sides. इससे बहुत ही सिंपल है. Now do the cross multiplication. That p square is equal to 5p square. This is your equation number 1. p square upon 5 is equal to q square. अब इस स्टेप पर फॉर्म डिस्कस करेंगे बच्चों कि p स्क्वायर एक संख्या है जिसको हमने 5 से डिवाइड किया तो हमको q स्क्वायर मिला. q स्क्वायर का कंडीशन क्या है? q is not equal to 0. Any integers but not equal to 0. यानी कि p स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको पूरी एक संख्या मिल रहा है. डिवीजन में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में संख्या नहीं मिल रहा है. यानी कि p स्क्वायर एक संख्या होगा जो 0 या 5 से है जिसमें 5 से पूरी तरह डिवीजन लग जाएगा. तो क्या करेंगे? इससे हमें रिजल्ट मिला कि p स्क्वायर इज divisible by 5, which means p is divisible by 5. जब p स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड होता है तो p भी 5 से डिवाइड होता है. बहुत ही आसान है. जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं 10 square is divisible by 5, so 10 is also divisible by 5. ये समझ आ गया बच्चों? This is equation number 2. अब यहां देखेंगे इस पर. अब इस स्टेप पर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहेंगे बच्चों में आपसे. इस स्टेप पर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. हम कोई भी एक संख्या की कल्पना करें जो p के द्वारा रिप्रेजेंट होता है और 5 से कट जाता है तो इसका क्या मतलब होगा? जो p जो संख्या हुआ वो 5 के टेबल में आता है. तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि p कोई भी एक ऐसी संख्या है जो 5 के टेबल में आता है. क्योंकि 5 के टेबल में आने वाली ही संख्या किससे कटेगी? 5 से कटेगी. मतलब वो 5 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो, 25 हो सकता है, 30. एनी नंबर which comes in the table of 5 or which is the multiple of 5 is represented by p. तो हम मान लेंगे कि अगेन let p is equal to 5x. Is it clear? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड. p square is equal to 5x whole square. इक्वेशन 1 में देखिए p स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है बच्चों? 5q स्क्वायर. इस p स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर. हम इसको कहां से लिए? p स्क्वायर किसके बराबर होगा? 5q स्क्वायर के बराबर. कहां से मिला हमको? इक्वेशन नंबर 1 से. फ्रॉम इक्वेशन 1. अब q square is equal to 25x square upon 5, that is equal to 5x square. बहुत ही आसान स्टेप. अब 5 में बदलो. q square upon 5, that is equal to x square. अब इसे क्या रिजल्ट निकला आपको कि q square is divisible by 5, which means q is also divisible by 5. This is the equation number 3. क्लियर? एक बार और हम यहां से एक्सप्लेन करेंगे कि p जो p एक संख्या है जो 5 के टेबल में आता है. तो हम यहां पर p is equal to 5x ले लेंगे. p अगर 10 है तो x कितना हो जाएगा? तो 5 to 10. p अगर 45 है तो x कितना हो जाएगा? 9, 5, 9 या 45. कंडीशन ये है कि p represent any number that comes in the table of 5 or it is a multiple of 5. Squaring both sides. Squaring both sides. p square is 5x square. अब यहां पर देखना है, ध्यान देना है कि p स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है? 5q स्क्वायर. हमने रिप्लेस किया इसको इक्वेशन 1 से. p स्क्वायर के लिए हमने क्या लिखा? 5q स्क्वायर. किससे? इक्वेशन 1 से 25x स्क्वायर. तो q स्क्वायर
स्क्वायर क्या हो गया, 5 से डिवाइड किया 5x स्क्वायर। सेम स्टेप को हमने यहाँ फॉलो किया है। अब थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे P and Q are divisible by 5। हमने क्या माना था बच्चों, शुरू में जो कंडीशन माना था कि P और Q क्या है हमारा, को प्राइम है। We assume that P and Q are को प्राइम। हमने जब फैक्ट को हम जब उसके अपोजिट हमने माना कि हमको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, उसका उल्टा हम उसको मान कर सकते, तो हम किस रिजल्ट पर पहुंचे कि P और Q को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है कि P और Q 1 के अलावा किससे कर सकता है, 5 से। कैसे, ये हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में प्रूव किया है। इक्वेशन 2 में हमने प्रूव किया है कि P इज डिविजिबल बाय 5, इक्वेशन 3 में हमने प्रूव किया है कि P इज डिविजिबल बाय 5। तो इससे क्या हमें पता चला कि हमारा जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इट इज, ये स्टेटमेंट लिखना है, तो याद रखिएगा, इट इज contradictory to our assumption। जो हमने माना था उसका अपोजिट निकला। सो √5 is an irrational number. It is not a rational number. √5 is a irrational number. So my dear students, now I am giving you homework assignment. You have to solve exercise 1.2 and 1.3 and also 1.4 from NCERT book. At the same time, I would like to suggest to solve at least 30 to 40 questions from our